بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہیں انکہیں کی محفل میں سب دوستوں کو میرا سلام۔ دوستو، غلام عباس اردو ادب میں ایک بہت بڑا نام ہے، جن کے افسانوں میں معاشرے کی کئی اہم مگر تلخ حقیقتوں کا ذکر بہت باریک بینی سے کیا جاتا ہے۔ آج میں نے ان کے افسانوں کی کتاب جاڑے کی چاندنی میں سے ایک افسانہ سلیکٹ کیا ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ تو سنیے، افسانے کا نام ہے اوور کوٹ۔ جنوری کی ایک شام کو ایک خوش پوش نوجوان ڈیوس روڈ سے گزر کر مال روڈ پر پہنچا اور چیرنگ کراس کا رخ کر کے خرامہ خرامہ پٹری پر چلنے لگا۔ یہ نوجوان اپنی تراج خراج سے خاصا فیشنیبل معلوم ہوتا تھا۔ چمکتے ہوئے بال، باریک باریک مونچھیں گویا سرمے کی سلائی سے بنائی گئی ہوں، بادامی رنگ کا اوور کوٹ پہنے ہوئے جس کے کاج میں شربتی رنگ کا ایک ادھ کھلا پھول اٹکا ہوا، سر پر سبز فلیٹ ہیٹ ایک خاص انداز سے ٹیڑھی رکھی ہوئی، سفید سلک کا گلو بند گلے کے گرد لپٹا ہوا، ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں، دوسرے میں بیت کی ایک چھوٹی چھڑی پکڑے ہوئے جسے کبھی کبھی وہ مزے میں آ کر گھمانے لگتا تھا۔ یہ ہفتے کی شام تھی، بھرپور جاڑے کا زمانہ، سرد اور تند ہوا کسی تیز دھات کی طرح جسم پر آ کے لگتی تھی، مگر اس نوجوان پر اس کا کچھ اثر معلوم نہیں ہوتا تھا۔ لوگ خود کو گرم کرنے کے لیے تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے، مگر اسے اس کی ضرورت نہ تھی، جیسے اس کڑکڑاتے جاڑے میں اسے ٹہلنے میں مزہ آ رہا ہو۔ اس کی چال ڈھال سے ایسا باغپن ٹپکتا تھا کہ تانگے والے دور سے ہی دیکھ کر سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کی طرف لپکتے، مگر وہ چھڑی کے اشارے سے نہیں کر دیتا۔ ایک خالی ٹیکسی بھی اسے دیکھ کر رکی، مگر اس نے نو تھینک یو کہہ کر ٹال دیا۔ جیسے جیسے وہ مال کے زیادہ بارونق حصے کی طرف پہنچتا جاتا تھا، اس کی چونچالی بڑھتی ہی جاتی تھی۔ وہ منہ سے سیٹی بجا کے رقص کی ایک دھن نکالنے لگا۔ ایک دفعہ جب آس پاس کوئی نہیں تھا تو یک بارگی کچھ ایسا جوش آیا کہ اس نے دوڑ کر جھوٹ موٹ بال دینے کی کوشش کی، گویا کرکٹ کا میچ ہو رہا ہو۔ رستے میں وہ سڑک آئی جو لارنس گارڈن کی طرف جاتی تھی، مگر اس وقت شام کے دھندلکے اور سخت کہرے میں اس باغ پر کچھ ایسی اداسی برس رہی تھی کہ اس نے ادھر کا رخ نہ کیا اور سیدھا چیرنگ کراس کی طرف چلتا رہا۔ اس نے اپنا رومال نکالا جسے جیب میں رکھنے کی بجائے اس نے کوٹ کی بائیں آستین میں اڑس رکھا تھا اور ہلکے ہلکے چہرے پر پھیرا تاکہ کچھ گرد جم گئی ہو تو اتر جائے۔ پاس ہی سے گھاس کے ایک ٹکڑے پر کچھ بچے ایک بڑی سی گیند سے کھیل رہے تھے۔ وہ بڑی دلچسپی سے ان کا کھیل دیکھنے لگا۔ بچے کچھ دیر تک اس کی پرواہ کیے بغیر کھیل میں مصروف رہے، مگر جب وہ برابر تک ہی چلا گیا تو وہ رفتہ رفتہ شرمانے سے لگے اور پھر اچانک گیند سنبھال کر ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے وہ گھاس کے اس ٹکڑے ہی سے چلے گئے۔ نوجوان کی نظر سیمنٹ کی ایک خالی بینچ پہ پڑی اور وہ اس پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت شام کے اندھیرے کے ساتھ ساتھ سردی اور بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی یہ شدت ناخوشگوار نہ تھی۔ مال روڈ پر موٹروں اور بائسکلوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ پٹری پہ چلنے والوں کی بھی بہت کثرت تھی۔ علاوہ ازیں سڑک کی دو رویہ دکانوں میں خرید و فروخت کا بازار بھی گرم تھا۔ جن کم نصیبوں کو نہ تفریح تباہ کی استاد تھی نہ خرید و فروخت کی، وہ دور ہی کھڑے کھڑے ان تفریح گاہوں اور دکانوں کی رنگا رنگ روشنیوں سے جی بہلا رہے تھے۔ نوجوان سیمنٹ کی بینچ پر بیٹھا اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے زن و مرد کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر ان کے چہروں سے کہیں زیادہ ان کے لباس پر پڑتی تھی۔ ان میں ہر وضع اور ہر کماش کے لوگ تھے، بڑے بڑے تاجر، سرکاری افسران، لیڈر، فنکار، کالجوں کے طلباء اور طالبات، نرسیں، اخبار کے نمائندے، دفتروں کے بابو، زیادہ تر سبھی لوگوں نے اوور کوٹ پہن رکھا تھا۔ ہر قسم کے اوور کوٹ، کراکلی کے بیش قیمت اوور کوٹ سے لے کر خاکی پٹی کے پرانے فوجی اوور کوٹ تک جنہیں نیلام میں خریدا گیا تھا۔ نوجوان کا اپنا اوور کوٹ تھا تو خاصا پرانا، مگر اس کا کپڑا خوب بڑھیا تھا۔ پھر وہ سلا ہوا بھی کسی ماہر درزی کا تھا۔ اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی بہت دیکھ بھال کی جاتی ہے۔
कॉलर खूब जमा हुआ था, बाहों की करीजें बड़ी नुमायां, सिलवट कहीं नाम को नहीं, बटन सींग के बड़े बड़े चमकते हुए। नौजवान इसमें बहुत मगन मालूम होता था। एक लड़का पान बीड़ी सिगरेट का संदूकचा गले में डाले सामने से गुजरा। नौजवान ने आवाज़ दी, पान वाला। जनाब, 10 का चेंज है तो नहीं, ला दूंगा, क्या लेंगे आप? नोट लेकर भाग गया तो? अजी वाह, कोई चोर उचक्का हूँ जो भाग जाऊंगा? एतबार ना हो तो मेरे साथ चलिए। लेंगे क्या आप? नहीं, हम खुद चेंज लाएंगे। लो, यह कन्नी निकल आई, एक सिगरेट दे दो और चले जाओ। लड़के के जाने के बाद वो सिगरेट के कश लगाने लगा। एक छोटी सी सफ़ेद रंग की बिल्ली सर्दी में ठठरती हुई बेंच के नीचे इसके कदमों में के पास आकर म्याऊं म्याऊं करने लगी। इसने पुचकारा तो उछलकर बेंच पर आ चढ़ी। इसने प्यार से इसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, पुअर लिटिल सोल। अब 7 बज चुके थे और वो माल की पटरी पर फिर पहले की तरह मटरगश करता हुआ चला जा रहा था। एक रेस्टोरेंट में ऑर्केस्ट्रा बज रहा था। अंदर से कहीं ज़्यादा बाहर लोगों का हजूम था। इनमें ज़्यादातर मोटर के ड्राइवर, कोचवान, फल बेचने वाले जो अपना माल बेच के खाली टोकरे लिए खड़े थे। कुछ राहगीर जो चलते चलते ठहर गए थे। कुछ मजदूरी पेशा लोग थे और कुछ गदागर भी। नौजवान पल भर के लिए रुका और फिर आगे बढ़ गया। रास्ते में एक छोटा सा बुक स्टॉल पड़ा। नौजवान यहाँ भी रुका। कई ताज़ा रसालों के वर्क उल्टे। रसाला जहाँ से उठाता बड़े ही एहतियात से वहीं रख देता और आगे बढ़ा तो कालीनों की एक दुकान ने इसकी तवज्जो अपनी तरफ मबसूल करवाई। मालिक दुकान, जो एक लंबा सा चोगा पहने और सर पे कुला रखे था, गर्मजोशी से इसकी आवभगत करने लगा। ज़रा ये ईरानी कालीन देखना चाहता हूँ। उतारिए नहीं, यही देख लूँगा। क्या कीमत है इसकी? 1432 रुपये। नौजवान ने अपनी भवों को सुकेड़ा, जिसका मतलब था, ओहो, इतनी? दुकानदार ने कहा, आप पसंद कर लीजिए, हम जितनी भी रियायत कर सकते हैं कर देंगे। शुक्रिया, लेकिन इस वक्त तो मैं सिर्फ एक नज़र देखने आया हूँ। शौक़ से देखिए, आप ही की दुकान है। 2-3 मिनट के बाद इस दुकान से भी निकल आया। इसके ओवरकोट के कांच में शरबती रंग के गुलाब का जो अधखिला फूल अटका हुआ था, वो इस वक्त कांच से कुछ ज़्यादा बाहर निकल आया था। जब वो इसको ठीक कर रहा था तो इसके होंठों पर एक खफीफ और पुरसरार मुस्कुराहट नमूदार हुई और इसने फिर अपनी मटरगश्त शुरू कर दी। अब वो हाई कोर्ट की इमारतों के सामने से गुज़र रहा था। इतना कुछ चलने के बाद भी इसकी तबीयत की चंचाले में कोई फ़र्क नहीं आया था। ना थकान महसूस हुई थी, ना ही उकताहट। यहाँ पटरी पर चलने वालों की टोलियाँ कुछ छट सी गई थीं और इनमें काफ़ी फासला रहने लगा था। इसने अपनी बैद की छड़ी को एक उंगली पर घुमाने की कोशिश की, मगर कामयाबी ना हुई और छड़ी ज़मीन पर गिर पड़ी। ओह सॉरी कहकर ज़मीन पर झुका और छड़ी को उठा लिया। नौजवान ने शाम से अब तक अपनी मटरगश्त के दौरान में जितनी इंसानी शक्लें देखी थीं, इनमें से किसी ने भी इसकी तवज्जो को अपनी तरफ मबसूल नहीं कराया था। फिल हकीकत इनमें कोई जाज़बियत थी ही नहीं, या फिर वो अपने हाल में ऐसा मस्त था कि किसी दूसरे से सरोकार था ही नहीं। मगर अभी भी इसने आधी ही सड़क पार की होगी कि ईंटों से भरी हुई एक लारी पीछे से भगोले की तरह आई और इसे रोनती हुई मैक्लो रोड की तरफ से निकल गई। लारी के ड्राइवर ने नौजवान की चीख सुनकर पल भर के लिए गाड़ी की रफ्तार कम की। वो समझ गया कि कोई लारी की लपेट में आ गया और वो रात के अंधेरे से फ़ायदा उठाते हुए लारी को ले भागा। 2-3 राहगीर जो इस हादसे को देख रहे थे शोर मचाने लगे, नंबर देखो, नंबर देखो, मगर लारी हवा हो चुकी थी। इतने में कई और लोग जमा हो गए। ट्रैफिक का एक इंस्पेक्टर जो मोटरसाइकिल पर जा रहा था रुक गया। नौजवान की दोनों टांगें बिल्कुल कुचली गई थीं। बहुत सा खून निकल चुका था और वो सिसक रहा था। फ़ौरन एक कार को रोका गया और इसे जैसे तैसे इसमें डालकर अस्पताल रवाना कर दिया गया। जिस वक़्त वो अस्पताल पहुंचा तो इसमें अभी रमक भर जान बाकी थी। इस अस्पताल के शोबाए हादसात में असिस्टेंट सर्जन मिस्टर खान और 2 नौमन नर्सें मिस शहनाज और मिस गुल ड्यूटी पर मौजूद थीं।
जिस वक़्त इसे स्ट्रेचर पर डालकर ऑपरेशन रूम में ले जाया जा रहा था तो इन नर्सों की नज़रें इस पर पड़ी। इसका बादामी रंग का ओवरकोट अभी तक इसके जिस्म पर था और सफ़ेद सिल्क का मफलर गले में लिपटा हुआ था। इसके कपड़ों में जा बजा खून के बड़े बड़े धब्बे थे। किसी ने अज़राहे दर्दमंदी इसकी सब्ज़ फ्लैट हैट उठा के इसके सीने पे रख दी थी ताकि कोई उड़ा ना ले जाए। शहनाज ने गुल से कहा, किसी भले घर का मालूम होता है बेचारा। गुल दबी आवाज़ में बोली, खूब बन ठन के निकला था बेचारा। ड्राइवर पकड़ा गया या नहीं? नहीं, भाग गया। कितने अफसोस की बात है। ऑपरेशन रूम में असिस्टेंट सर्जन और नर्सें चेहरे पे जराही के निकाब चढ़ाए जिन्होंने इनकी आंखों के नीचे के सारे हिस्से को छुपा रखा था, इसकी देखभाल में मसरूफ़ थे। इसे संगे मरमर की मेज़ पर लटा दिया गया। इसने सर में जो तेज़ खुशबूदार तेल डाल रखा था, इसकी कुछ कुछ महक अभी तक बाकी थी। पट्टियाँ अभी तक जमी हुई थीं। हादसे से इसकी दोनों टांगें तो टूट चुकी थीं मगर सर की मांग नहीं बिगड़ने पाई थी। अब इसके कपड़े उतारे जा रहे थे। सबसे पहले सफ़ेद सिल्क का गुलूबंद इसके गले से उतारा गया। अचानक नर्स शहनाज और नर्स गुल ने बैक वक्त एक दूसरे की तरफ देखा। इससे ज़्यादा वो कर भी क्या सकती थीं। चेहरे जो दिली कैफियत का आईनादार होते हैं जराही के नकाब तले छुपे हुए थे और ज़बानें बंद। नौजवान के गुलूबंद के नीचे नकटाई और कॉलर तो क्या, सिरे से कमीज़ ही नहीं थी। ओवरकोट उतारा गया तो नीचे से एक बोसीदा ऊनी स्वेटर निकला जिसमें जा बजा बड़े बड़े सुराख थे। इन सुराखों से स्वेटर से भी ज़्यादा बोसीदा और मैला कुचैला एक बुनियान नज़र आ रहा था। नौजवान सिल्क के गुलूबंद को कुछ इस ढप से गले पर लपेटे रखता था कि इसका सारा सीना छुपा रहता था। इसके जिस्म पर मैल की तहें भी खूब चढ़ी थीं। ज़ाहिर होता था कि वो कम से कम पिछले 2 महीनों से नहीं नहाया। अलबत्ता गर्दन खूब साफ़ थी और इस पर हल्का हल्का पाउडर लगा हुआ था। स्वेटर और बनियान के बाद पतलून की बारी आई। पतलून को पेटी के बजाय एक पुरानी धज्जी से, जो शायद कभी नकटाई होगी, खूब कस के बांधा गया था। बटन और बक्सूए गायब थे। दोनों घुटनों पर से कपड़ा मसक गया था और कई जगह खूंचें भी लगी थीं मगर चूंकि ये हिस्से ओवरकोट के नीचे रहते थे इसलिए लोगों को इनकी नज़र नहीं पड़ती थी। अब बूट और जराबों की बारी आई और एक मर्तबा फिर मिस शहनाज और मिस गुल की आंखें चार हुईं। बूट तो पुराने होने के बावजूद खूब चमक रहे थे मगर एक पाँव की जराब दूसरे पाँव की जराब से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। फिर दोनों जराबें फटी हुई भी थीं, इस कदर कि इनमें से नौजवान की मैली मैली एड़ियाँ नज़र आ रही थीं। बिलाशुबा इस वक़्त तक वो दम तोड़ चुका था। इसका जिस्म संगे मरमर की मेज़ पर बेजान पड़ा था। इसका चेहरा जो पहले छत की सिमत था कपड़े उतारने में दीवार की तरफ मुड़ गया था। मालूम होता था कि जिस्म और इसके साथ रूह की इस बरहंगी ने इसे खजल कर दिया है और वो अपने हम जिन्सों से आंखें चुरा रहा है। इसके ओवरकोट की मुख्तलिफ जेबों से जो चीज़ें बरामद हुईं वो ये थीं: एक छोटा सा स्याह कंगा, एक रुमाल, 6.5 आने, एक बुझा हुआ आधा सिगरेट, एक छोटी सी डायरी जिसमें लोगों के नाम और पते लिखे थे, नए ग्रामोफोन रिकॉर्डों की एक माहाना फहरिस्त और कुछ इश्तिहार जो मटर गश्त के दौरान में इश्तिहार बेचने वालों ने इसके हाथ में थमा दिए थे और इसने इन्हें ओवरकोट की जेब में डाल लिया था। अफसोस कि इसके बैद की छड़ी जो हादसे के दौरान में कहीं खो गई थी इस फहरिस्त में शामिल न थी। जी दोस्तों, आपको ये अफ़साना कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मुझे आपके तबसरे का इंतज़ार रहेगा। आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो, सुनाने का अंदाज़ पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट्स का तो मुझे वेट रहेगा ही। अल्लाह हाफ़िज़।